hello, welcome back to my channel. And today I'm going to deal with the most requested question, and that is for the freshers. That they have asked me, ki, ma'am, how can we start studying? How to make notes? What are the mistakes that you should be avoiding? And what are the smart ways you can cope up with the studies, both with Ayurveda and modern? So yes, we are going to deal every part very specifically. And let's start with an intro. I am Apurva Singh and I am a second Prof BMS student. And today we are going to talk about what are subjects that we study in BMS first year, how you could study those subjects smartly, what are the ways you can prepare your notes, and lastly, what are the mistakes that you should be avoiding in your first year. So let's get started. So first of all, let's start with the subjects. So we are going to have PV, that is Padarth Vigyan. Then we are going to have Sanskrit. Then we are going to have anatomy, physiology, which is somewhat going to be similar with your MBBS syllabus. But एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको मॉडर्न के साथ आयुर्वेदा पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा. And after that we have Samhita, and Samhita actually consists of two books right now. It will consist of Ashtang Hriday and it will consist of Charak Samhita. But trust me, with time you are going to enjoy both of the books, because Samhita is something which is, we should not call it Samhita, but we should call it as Gita of Ayurveda students, because it behold such principles that could make your career or that could break your career if you don't study Samhita properly, if you don't give regard to Samhita. So yes, Samhita do hold the potential of making your career and breaking it. So let's start and identify all the subjects one by one. Padarth Vigyan will have two papers, paper 1 and paper 2. Both papers you will face individually in examination. And when we talk about paper 1 is more about the terminologies that you'll also deal with Samhita. And it is very important while you are studying Padarth Vigyan, do correlate with the clinical application. And it is not difficult. After a while, after the 6 months and 8th month, you will start to correlate Samhita and Padarth Vigyan. And when you will start to correlate, there is the time you have to take out some clinical applications, and that will give you the edge in writing your examination. जब आप examination लिखोगे तो there is seldom asked questions कि इसका clinical application क्या होगा, उसका clinical application क्या होगा. तो yes, this point is going to give you an edge. तो आप अभी जैसे अगर पदार्थ विज्ञान पढ़ते हो तो आपको उसको, वो स्टोरी बुक नहीं है, ठीक है, आपको उसको संहिता से कोरिलेट करके पढ़ना है. चाहे वो गुण हुआ, द्रव्य हुआ, पदार्थ हुआ. अभी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल लगेगा कि क्यों ये सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे, इसका क्या मतलब है. उसके बाद फिर PV2 में जाओगे तो और ज़्यादा आपका दिमाग खराब होगा. प्रमाण, आप्तोपदेश, कार्य कारण सिद्धांत, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप उसको एक ऐसा टॉपिक्स की तरह लीजिए जिसको आपको पहले समझना है. पहले आप उसको कंसेप्चुलाइज कीजिए, क्योंकि रटना थोड़ा सा है उसमें, क्योंकि डेफिनेशन ज़्यादा है तो आपको रटना पड़ेगा. पहले आप उसको कंसेप्चुलाइज करके समझने का कोशिश करिए कि एक्चुअली उसमें वो चैप्टर के बारे में अगर हमें बताया जा रहा है तो उसमें संहिता में उसका क्या रेलेवेंस है, उस संहिता पढ़ने में वो चैप्टर मुझे कैसे मदद कर रहा है. आप ये कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको पदार्थ विज्ञान में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप अच्छे से उसको कंसेप्चुलाइज भी कर पाओगे कि ओके, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक एंड अंडर दिस टॉपिक व्हाट आर द कोरिलेशंस ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन, थेरेप्यूटिक्स दैट कम्स अंडर योर संहिता पेपर. Okay, so now we have done with Padarth Vigyan. Let's talk about Sanskrit, the most talked topic. BMS first year consists of your 1 year and 6 months. और that is the only time when you have to study Sanskrit. आपको संस्कृत का स्कॉलर नहीं बनना है और no one will force you to become a Sanskrit scholar. So this is the key point which many of students ignore. उनको पहले पहले लगता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, संस्कृत भी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब है, बट संस्कृत आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. और संस्कृत को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसका बेसिक ग्रामर समझो. आप सिलेबस पे जाओ और पॉइंट उठाओ कि कौन सा पॉइंट सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि उससे बाहर से क्वेश्चन आपको आएगा नहीं. और तीसरा चीज़ है, आप PYQ सॉल्व करो. जब आप PYQ देखोगे, अभी PYQ देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. पहले आप बेसिक ग्रामर समझ लो, किसी सीनियर्स का नोट्स ले लो और उसके बाद PYQ देखो. जब आप PYQ देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि कुछ नहीं है.
पेपर इजी है, टैकल हो जाएगा और आपको स्कोर भी दिलाएगा। हाँ, अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टीचर, आपके कॉलेज में कितने स्ट्रिक्ट टीचर है, क्योंकि कभी कभी अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं तो वो हाँ बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देते हैं, वो बच्चों को उतना ही देते हैं जितना उन्होंने पेपर में लिखा है। तो कभी कभी अगर श्लोकाज में मिस्टेक हो गया या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उस पर भी वो टीचर्स मार्क्स काटते हैं। तो अगर स्ट्रिक्ट टीचर है संस्कृत के तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट आप फेल नहीं होगे। आप ये 3 ट्रिक्स फॉलो करते हो, ग्रामर पे ध्यान दे दिया, टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सुन लिया, और तीसरा चीज़ है कि आप उसको पीवाईक्यू जितना हो सके 5 से 6 पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो आपका संस्कृत जो है वो टैकेबल बन जाता है। आपको उसका स्कॉलर नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, संस्कृत का बेसिक्स जानना जरूरी है, क्योंकि संधि जो है वो आपका प्रयोग संहिता में भी होगा। बहुत बड़े बड़े श्लोकास आएंगे संहिता में, तो आपको उसको संधि विच्छेद कैसे करना है, आपको एक्चुअली श्लोकास रीड कैसे करना है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जब आप शायद बीएमएस पास आउट हो जाओगे ना, आप तब भी संहिता पढ़ोगे, क्योंकि संहिता में इतना सारा गुड़ रहस्य छुपा हुआ है ना, मतलब इतना सारा चिकित्सा सूत्र, इतने सारे प्रिंसिपल्स जो हम वैद्यों के लिए बहुत उपयोगी है। और आप जितना बार संहिता पढ़ोगे ना, आपको कुछ नया मिलेगा, जितना बार। तो संहिता एक ऐसा शास्त्र है ना कि वो एक मतलब जो अभी 5.5 ईयर्स है ना आपका बीएमएस का, दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ फॉर यू टू स्टडी संहिता। तो आप संहिता को लाइफ टाइम पढ़ने वाले हो, और पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें संस्कृत की वो आनी ही चाहिए। तो आप उस पर बस फोकस रखो कि कैसे आप संस्कृत के थ्रू अपना संहिता इजी कर सकते हो, rather देन उतना संस्कृत पे आपको फोकस करके ब्लैबर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत इज इवेंचुअली अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड यू विल नो हाउ टू अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर। सो बेसिकली एनाटॉमी में क्या है कि ये पूरा एमबीबीएस का सिलेबस है, इसमें बोन्स है, जॉइंट्स है और मसल्स है, ये सारी चीज़ें आने वाली है। और हाँ, कभी कभी एनाटॉमी बहुत वास्ट लगने वाला है, क्योंकि इसमें उसके साथ हमारा आयुर्वेदा पोर्शन भी आएगा, जैसे मर्म हो गया, अस्थि हो गया, श्रोतस हो गया। और मैं बता रही हूँ ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल मर्म ले लीजिए, ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जाम तक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको मॉडर्न पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप आयुर्वेदा पोर्शन छोड़ दें। मेरा हाई रिकमेंडेशन रहेगा कि आप आयुर्वेदा पोर्शन के लिए नोट्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदा पोर्शन इज एक्चुअली वेरी इजी। इट इज जस्ट यू शुड हैव द नोट्स ऑफ दैट टॉपिक, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम होके आएगा कि श्रोतास को डिफाइन करो, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस, उसका इंपॉर्टेंस, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। और अगर आपके पास नोट्स तैयार है आयुर्वेदा पोर्शन का, बीइंग इट धमनी, बीइंग इट श्रोतास और बीइंग अस्थि शरीर, मर्म शरीर, अगर आपके पास नोट्स तैयार है तो आप अगर उस नोट्स को 2 से 3 बार भी पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में स्कैन हो जाएगा, और जब वो क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में तो आप हूबहू 4 पेज 5 पेज तक वो सारे नोट्स को छाप सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट मेक द नोट्स ऑफ द आयुर्वेदा पोर्शन। और मॉडर्न पोर्शन के लिए मैं रिकमेंड करूंगी आप महेंद्र सिंह को ज़रूर रेफ़र करो, क्योंकि आपको एमबीबीएस वाले सिलेबस जितना पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब बीडीसी में ना बहुत वास्ट दिया हुआ है। इनिशियली हम भी स्टार्टिंग में बीडीसी से पढ़ना शुरू किए थे, बहुत अच्छे डिटेल्स में। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, गो फॉर इट, बट अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना है तो यू हैव टू मेक योर टॉपिक शॉर्टर, बिकॉज देर इज ऑलरेडी गोइंग टू बी अ वेरी वास्ट सिलेबस। सो महेंद्र सिंह में क्या है ना कि वो एनसीआईएसएम का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स बना हुआ है। महेंद्र सिंह में आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत छोटे में कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस है, पॉइंट्स छोटा बनाया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ईजी सिंपल वर्ड्स में। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप महेंद्र सिंह को ज़रूर रेफ़र करो। और उसके बाद अगर आपको मन करे, टाइम बच रहा है आपके पास क्लासेस खत्म होने के बाद और आपको बहुत जिज्ञासा है एनाटॉमी में, तो बीडीसी से भी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बीडीसी जितना वास्ट दिया हुआ है उतना ही वास्ट आपका नॉलेज होगा। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना है तो बीडीसी से ज़रूर पढ़ना। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का अगर नज़र में है तो मैं बोलूँगी कि हाँ, महेंद्र सिंह को ज़रूर रेफ़र करिए। और कोशिश करिए, सबसे बड़ा टिप, कि आयुर्वेदा पोर्शन, बीइंग इट क्रिया शरीर, बीइंग इट एनाटॉमी, उसके जो टर्म्स है आप हिंदी में ही लिखो, ठीक है। अभी इनिशियली टर्म 1 एग्जामिनेशन में दिक्कत होगा, बट टर्म 2 जब तक आपका होगा आप समझ जाओगे कि कैसे आपको हिंदी का वर्ड यूज़ करना है। तो जैसे कोई व्याधि का नाम है, या फिर जैसे अब मैंने बोला श्रोतस शरीर, तो श्रोतस का जो स्पेलिंग है, जब आप उसका डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप उसको हिंदी में ही लिखो, क्योंकि आप जब डेफिनेशन हिंदी में लिखते हो ना तो वो श्लोका से बहुत मैच होता है और एग्जामिनर आपको वो हिंदी के डेफिनेशंस देख के ज़्यादा मार्क्स देंगे।
आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो समय बचाने के लिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी के हैंडराइटिंग में हमारा स्पीड ज़्यादा नहीं होता, पर कंप्लीट नहीं होने का डर रहता है जब आप हिंदी में लिखते हो, तो उस केस में आप इंग्लिश का प्रयोग करो। जैसे आप क्लिनिकल एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप इंग्लिश में लिखो, बट जो रेलेवेंट वर्ड्स संस्कृत श्लोका में अवेलेबल है उसके वर्ड्स आप हिंदी में लिखो, तो आपको ज़्यादा स्कोर करने का मौका मिलेगा। अब आते हैं हम लोग क्रियाशयी। तो क्रियाशयी, ट्रस्ट मी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सब्जेक्ट इन BMS फर्स्ट ईयर, because I did score distinction in that subject, not because I studied that subject very thoroughly, but because I was having an interest in that subject. It is an interesting subject because it will also match with the syllabus that you have studied with somewhat 11th and 12th general human physiology, relate with the syllabus that you have studied already and what you are going to study now. Because हाँ, आप 11 12 के बेसिस पे पूरा फर्स्ट ईयर तो नहीं ना पढ़ सकते हो, थोड़ा तो आपको डॉक्टर वाला पढ़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर वाले पढ़ने के लिए ना आपको पहले इंटरेस्ट डेवलप करना होगा कि मान लीजिए आप GIT पढ़ रहे हो, तो आप उसको कोरिलेट करके, इमेजिन करके, विजनरी बना के पढ़ो कि आपके GIT में वो चीज़ कैसे काम कर रहा होगा। अगर ये यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है तो क्यों सिक्रीट हो रहा है, वो फैट को डिसॉल्व करेगा। फिर अगर फैट ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है तो नेक्स्ट एंजाइम्स है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे। तो ऐसे आप जब कोरिलेट करके इमेजिन करके पढ़ते हो ना, तो वो सब्जेक्ट में आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाता है। और क्रियाशरीर का मैं बोलूँगी, मेक फ्लो चार्ट्स and try to remember the physiology in flowcharts, because physiology is all about function and functions के बहुत सारे steps होते हैं। बहुत सारे steps अगर आप पैराग्राफ में याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा, तो always try to include flowcharts in your notes. That will also make it easy for you to study and आपका जो दिमाग है उसमें pictorial graph जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से सेव होते हैं। आप अगर फ्लो चार्ट में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक सेव भी रहेगा। मैं समीता का तारीफ पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से करती हूँ। समीता या तो आपको वैद्य बना सकता है, नहीं तो आप डॉक्टर बनोगे। अब वैद्य और डॉक्टर में क्या डिफरेंस है वो आप फाइनल ईयर तक समझ जाओगे। तो समीता को क्या करना है ना, बिल्कुल एक तो वो सब्जेक्ट को आपको डरना नहीं है, ठीक है। वो सब्जेक्ट को एज अ सीनियर सिटीजन रखना है आपको कि ये सब्जेक्ट जो है शायद वो मुझे अभी समझ ना आए, लेकिन बाद में चल के इन्हीं के दिए हुए वचन मेरे को काम आने वाले हैं। तो वो सब्जेक्ट को आप जब अभी पढ़ना शुरू करोगे ना, तो अभी आप क्या हो कि आप बहुत अपने इंग्लिश एरा में हो। मैं भी थी, मैं आई बिलोंग फ्रॉम ICSE स्कूल और मुझे हिंदी में ट्रबल होता था, तो फिर आप सोचिए संस्कृत में मुझे कितना परेशानी हुआ। बट एक बात मैं फिर से अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी, अगर इफ़ यू हैव मेकअप इन योर माइंड कि नो दिस इज अ थिंग यू हैव टू डू और यू वांट टू डू, देन देयर आर नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू। मतलब एवरीथिंग फॉल्स इन योर वे, आइदर गॉड मेक इट पॉसिबल, आइदर environment make it possible, either you make it possible out of your hard work, I don't know, but if you want that thing and you want it from your whole heart, you will achieve that thing. And it is everything, even if it is true with subjects, your distinction, your score, your marks, with BMS, MBBS, everything. This rule applies everywhere. So I was talking about Samhita. So Samhita is actually a very core subject. First you start reading Samhita and start to read the shloka part, try to do the sandhi vichhed, and after reading the shloka नीचे जाइए और उसके explanations को समझने का कोशिश करिए। साथ ही में notes भी बनाते रहिए, क्योंकि अगर समीता का notes एक बार आप बनाना सीख गए तो आप समीता को पढ़ना और लिखना दोनों सीख। Now as a second professional student, I will tell you one mistake I seldom repeated in making notes, and that is not using this 3-layer method. What is this 3-layer method? Actually आपको क्लास में भी एक नोट्स बनाना है, आपको फिर एक टेक्स्ट बुक अपना जाके घर पढ़ना है और उससे भी नोट्स बनाना है, और तीसरा है कि एक एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होना चाहिए। यानी कि जब आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहे आप साथ में लिखते रहो। वो बोलेंगे कि आपका ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, PG के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कीवर्ड है, आप उसको मार्क करो उसी नोटबुक में। तो एक रफ नोटबुक रखो जिसमें आप सारे सब्जेक्ट का जो, या तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी एक एक बना सकते हो, आप रोज उसको लेकर कॉलेज लेकर जाना अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक रफ नोटबुक बना रहे हो जिसमें आप वैसे टीचर्स का लिख रहे हो जो ज़्यादा लिखवाते नहीं है, बट स्टिल व्हेन अ टीचर इज टीचिंग यू, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट डाउन, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, आपको फिर रूम जाना है, रूम जाके अगर आपको समीता पढ़ाई हुआ है तो समीता खोलना है, और उसमें से अपना कीवर्ड्स आपको जो मिल रहा है, जो वैसे वर्ड्स टीचर ने मेंशन किया बट आप लिख नहीं पाए, वैसे वर्ड्स जो टीचर्स ने मेंशन किया बट उन्होंने लिखवाया नहीं, वो सारे वर्ड्स को ढूंढ के आपको उसी नोट्स कॉपी में लिख लेना है।
ऐसे क्या हुआ कि आपका बहुत अच्छा एक फाइनेस्ट नोट वो चैप्टर का तैयार हो जाएगा। थर्ड है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो जब आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाओगे ना, दैट इज गोइंग टू बी अ सेपरेट नोट्स, जिसमें आप स्टार्ट ही सिलेबस से करोगे। आपको सिलेबस खोलना है, सिलेबस का पॉइंट उठाना है। बाय द वे आप मर्म पढ़ रहे हो तो मर्म का पॉइंट उठाए, उसमें आपको दिखेगा कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारे चीज सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाना है, जिसमें आपके फ्लो चार्ट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, एक्जैक्टली वैसा ही छोटा नोट्स जो आप एग्जाम में छाप के आने वाले हो। एनाटॉमी मैं आपको बता रही हूँ कि डायग्राम्स आपको बहुत मार्क्स दिलवा सकते हैं। और डायग्राम क्या है ना कि अगर आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए 2 से 3 बार, तो आपका वो पिक्टोरल मेमोरी में सेव हो जाएगा, वो आप एग्जाम में नहीं भूलने वाले हो। और अगर ऐसा की पॉइंट आपको पता है कि डायग्राम से आपको मार्क्स दिलवाएगा, तो आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स में डायग्राम ज़्यादा बनाओगे। फॉर क्रिया शरीर आपको फ्लो चार्ट और टेबल्स जो है वो ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा, तो आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स में उसको ज़्यादा बनाने वाले हो। ठीक है, पैराग्राफ्स में मत जाओ। हाँ, एक बात है, एग्जाम के समय आपको कुछ पेजेस तो भरने पड़ेंगे, बट ट्राई करो कि नीट एंड क्लीन हो। साथ में आप अपना डायग्राम का यूज और फ्लो चार्ट का यूज बहुत वाइजली कर रहे हो। और कुछ स्टूडेंट्स ना श्लोका डायरी के बारे में पूछ रहे थे, तो हाँ, एक सेपरेट रजिस्टर बनाना बहुत जरूरी है आपके श्लोका के लिए। आपका श्लोका डायरी ऐसा डायरी है ना कि इट विल कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास दैट इज सेल्डम आस्क्ड इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। और आप जब उस श्लोका डायरी को बार बार देखोगे ना, तो आपका वो रिविजन होते जाएगा और तब आपका श्लोका ज्यादा समय तक याद रहेगा। क्योंकि श्लोका याद नहीं रहना is a very common issues among all the BMS students. Maybe there is 1 to 2 exceptions that have a very sharp memory, but most of the students forget shloka on the day of examination, and the only way you can retain shloka is by repeated revision.